چاہے وہ گائے ہو، خصی ہو، بکرا ہو، جو بھی اونٹ ہو. تو یہ بارش کا جو نازل کرنا ہے اللہ رب العالمین کا، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ چوپاؤں کو زندگی ملے، تاکہ زمین سے اناج اگے. اللہ رب العالمین، اسی لیے اللہ نے کہا کہ رحمان اور رحیم. اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، مہربان ہے. یہ کس وجہ سے رحیم اور مہربان ہے؟ اس وجہ سے کہ صرف اللہ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. یہ جو آسمان کی جو بارش نازل ہوتی ہے، اس بارش کے اندر بڑی حکمت ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر لوگ صحیح طور پر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے گا، اور اگر زمین پر چوپائے نہیں رہتے تو اللہ ایک قطرہ پانی کا برسائے گا. اب اندازہ لگا لیجیے اللہ رب العالمین کتنا رحمان اور رحیم ہے. زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ صحیح طور پر جو صاحب زکوٰۃ ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ بالکل جوڑ کر کیلکولیٹر سے کتنا میرے پاس سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، پراپرٹی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، جتنا نکل رہا ہے اتنا ہی نکالے. اپنی مزاج سے نہیں 5,000 روپے نکال دیے زکوٰۃ، 10,000 روپے نکال دیے زکوٰۃ. اللہ ایک سال میں 10 لاکھ دے رہا ہے اور ہم 2,000 روپے نکال دیے زکوٰۃ. اس کو اللہ زکوٰۃ نہیں مانتا، یہ ہم مان رہے ہیں. ہمارے ماننے سے کیا ہوگا؟ ہم تو جیسے نہیں ہیں، ہم تو عادل نہیں ہے کہ ہم جو بات بولتے وہی درست ہو جائے گی. بات وہی درست ہوگی جو اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرامین کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لوگ اگر صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے گا. لیکن نہیں روک رہا ہے اس وجہ سے کہ چوپائے دنیا میں ہے، ورنہ وہ مر جائیں گے چوپائے. تو ہمیں تو جانوروں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے اللہ ہمارے لیے بارش نازل کرتا ہے. کیوں شکر تو اللہ کا ہے. یہ ایک کہاوت ہے اس لیے کہ ہمارے اعمال اتنے برے ہو چکے ہیں کہ اللہ بارش نازل نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے جو بارش نازل کیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس بارش کی وجہ سے، بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. یعنی جو زمین میں کاشت نہیں ہوتی تھی، کھیتی نہیں ہوتی تھی، یا فصل نہیں اگ رہی تھی، اللہ نے بارش برسا کے فصل اگایا. کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے، تاکہ ہم لوگ کھا سکیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور چوپاؤں کا زمین میں پھیلا دینا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. ہم لوگ ٹرین بس سے سفر کرتے دیکھتے ہیں، جب بہت سے بیابان جگہوں سے گزرتے ہیں جہاں صرف بیابان میدان ہے، کھلے میدان ہے، دیکھ رہے ہیں کہ ادھر گائے کا ایک جھنڈ ہے جو چر رہا ہے، ادھر بکری کا جھنڈ ہے، تو ادھر اونٹ کا. دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اس کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے بس فیہا من کل دابہ، کہ ہم نے چوپایوں کو جو پھیلا دیا، جو چوپایوں کو پھیلانا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا بدلنا، رخ بدلنا. یہ جو ہوائیں بہتی ہیں، کبھی سرد ہوائیں بہیں گی، کبھی گرم ہوائیں بہیں گی، کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی گرم ہوا. جتنی چیزیں ہو رہی ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے. یہ اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نشانی. یہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے جب قرآن میں کوئی چیز کسی چیز کو بیان کر دیا تو آپ اس کی حقیقت کا اندازہ لگائیے کہ اب وہ قرآن وہ چیز آ گئی تو وہ معمولی نہیں ہے. کیونکہ قرآن معمولی کتاب نہیں، قرآن بہت اہم اور اصل اور خاص کتاب ہے. مزید اللہ نے کہا السحاب المسخر بین السماء والارض، اور زمین و آسمان کے درمیان بادلوں کا مسخر کر دینا. یعنی دن میں ہم جو اوپر دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، وہ آسمان نہیں، وہ بادل. آسمان اس سے بھی اوپر ہے، آسمان اس سے بھی اوپر ہے. ہم بادل کو دیکھتے ہیں، آسمان اس سے اوپر ہے. اللہ اسی بادل کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو بادل ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو کون پکڑ کے رکھے ہوا ہے، اس کو کون بچھا رہا ہے ہر جگہ اتنی بڑی دنیا میں، اس کو مینٹین کون کر رہا ہے. یہ ایسی ایسی نشانیاں ہیں جس کو ہم معمولی یا روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن ہے قرآن کہتا ہے افلا تدبرون، تم لوگ غور کیوں نہیں کرتے قرآن کے اندر. افلا تدبرون، تم لوگ غور کیوں نہیں کرتے قرآن مجید کے اندر. کتنی اچھی اچھی بات ہے. اللہ نے غور اس لیے کرنا ہے تاکہ ہمارا ایمان جذبہ بڑھے، اللہ کی قربت حاصل کریں ہم. یہ غور و فکر یہ ذریعہ ہے اللہ کے قریب جانے کا. ہم غور نہیں کریں گے تو اللہ کے قریب کبھی نہیں جا سکیں گے. یہ قرآن غور کرنے والی کتاب ہے، اس میں ہم غور کریں. لآیات لقوم یعقلون، لاسٹ میں اللہ رب العالمین نے ایک موٹی بات بیان کر دی کہ جتنی کچھ ہم نے بیان کیا، زمین و آسمان کی پیدائش، اسی طریقے سے رات و دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا نفع سامان لے کر لوگوں کا چلنا سمندر کے اندر، اسی طریقے سے بارش کو نازل کرنا اور مردار زمین کو زندہ کرنا، اسی طریقے سے چپاؤں کے زمین میں پھیلنا، ہواؤں کا رخ بدلنا، اور اسی طریقے سے بادل کا زمین و آسمان کے درمیان رہنا. یہ سب کے سب اللہ کی نشانی ہے. کن کے لیے؟
लआयातिन लिकौम याकिलून, अकल रखने वाली कौम के लिए। तो हम कैसे मानेंगे कौन अकलमंद है और कौन बेवकूफ है? इसका फर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। अकलमंद वो होगा जो अल्लाह की निशानियों को देखकर अल्लाह के करीब हो जाएगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के उन चीजों का इनकार नहीं करेगा जिसको अल्लाह ताला नापसंद करता है। वो कभी भी उसका इकरार नहीं करेगा, इनकार करेगा कि नहीं अल्लाह को पसंद नहीं है तो हम भी पसंद नहीं करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा कि लआयातिन लिकौमी मुस्लिमून, ये मुसलमानों के लिए निशानियां हैं, वल मोमिनून, या मोमिनों के लिए निशानियां नहीं। अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने कहा कि अगर कोई मोमिन है तो कोई जरूरी है वो अकलमंद है, अगर कोई मुसलमान है तो जरूरी है अकलमंद होगा। अकलमंद होने के लिए जरूरी है कि मोमिन होने के साथ साथ हम अकलमंद भी बने। इसी को कहा गया कुरान में हिकमत, और किताब और हिकमता, हिकमत उसी को कहा जाता है कि हम पहचाने अपने रब की निशानियों को। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी वहदानियत का जिक्र किया। 163 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा तुम सबका माबूद एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, वो रहमान रहीम है। 164 में अल्लाह ने अपनी निशानियों के बारे में बयान किया कि क्यों अल्लाह को अल्लाह माने, क्योंकि इतनी सारी चीजों को करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया तौहीद के अगेंस्ट में क्या आता है। तौहीद के उल्टा जिद जिसको बोलते हैं उर्दू में शिर्क आता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब आयत नंबर 165 में शिर्क के बारे में बयान किया। शिर्क के बारे में बयान किया। देखिए यहाँ पे एक जहन के अंदर ये बात जरूर होनी चाहिए और जहन खुला होना चाहिए। वो मैंने अभी बतलाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या होता है, कि हम तमाम माबूदान बातिला का इनकार करके इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह माबूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना होता है। लेकिन ऐसे मुसलमान आज भी हैं जो अल्लाह का इकरार करते लेकिन इनकार नहीं करते, एक पार्ट पर अमल नहीं करते। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना नहीं समझते, इल्लल्लाह का माना समझते हैं कि हाँ अल्लाह हमारा माबूद है। और ला इलाहा इल्लल्लाह में इनकार जो हो रहा है, इनकारी है, उसका किसी को इनकार नहीं कर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा दे रहा है। अल्लाह औलाद देने वाला, ये भी औलाद दे सकते हैं। अल्लाह सेहत देने वाला, ये भी सेहत दे सकते हैं। अल्लाह हिफाजत करने वाला, ये भी हिफाजत कर सकते हैं। ये एक ज़हनियत जो है जो बनी हुई है, उसी ज़हनियत को अल्लाह ने यहाँ बयान किया, जो अभी आयत नंबर 165 बयान किया जाएगा। अल्लाह ने कहा व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन, लोगों में से बाद लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों को उसका शरीक ठहराते हैं। अल्लाह क्या बयान कर रहा है कि लोगों में से बाद लोग ऐसे भी हैं, और लोगों से मुराद बात समझ रहे हैं जो इस्लाम को कबूल कर चुके मुसलमानों की बात हो रही है, यहाँ गैर मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, मुसलमानों का जिक्र अल्लाह कर रहा है। वो मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन, बाद लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा अंदादन उसका शरीक ठहराते हैं, और शरीक ठहराने के बाद युहिब्बूनहुम, उनसे मोहब्बत करते हैं। समझ आ रही है? यानी कोई आदमी ऐसा है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है क्योंकि अल्लाह उसका माबूद है, और किसी को भी उसने अल्लाह बना लिया, शरीक ठहरा लिया और उससे मोहब्बत भी करने लगा। लोगों में से बाद लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा उसका शरीक बनाते हैं। युहिब्बूनहुम, जिसको अल्लाह का शरीक बना रहे हैं उससे मोहब्बत करते हैं। अब अल्लाह ने बताया कैसी मोहब्बत करते हैं, कहुबिल्लाह, जैसा को अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। बात समझ आ रही है? क्या इस आयत के बाद भी कोई डाउट बचा हुआ है? जाहिर सी बात है कि जैसी मोहब्बत अल्लाह से करते वैसी मोहब्बत वो उससे करते हैं। तो अगर काफिर होगा तो काफिर तो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेगा, करेगा मोहब्बत? अभी वो बात गुजर चुकी है। कुफ्र का माना होता है अल्लाह का इनकार करने वाला। जो अल्लाह को नहीं मानता वो तो काफिर है, जो अल्लाह को मानता है मुसलमान है। तो इस आयत से मुराद कौन है, काफिर है कि मुसलमान है? अब सोचे, क्योंकि यहाँ अल्लाह साफ साफ बयान कर रहा है कि बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह का शरीक बनाते हैं और ऐसी मोहब्बत उससे करते जैसा कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से भी वैसी मोहब्बत कर रहे हैं और उससे भी वैसी मोहब्बत कर, दोनों में बराबर मोहब्बत कर रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन चीज है, ये हो नहीं सकता। और अगर कोई कर रहा है तो क्या कर रहा है, शिर्क कर रहा है। अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान वाले होते हैं। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लफ्ज का चुनाव किया है, वल्लज़ीना अस्लमू का लफ्ज नहीं कहा जो इस्लाम कबूल करने वाले हैं या जो मुसलमान हैं। यही कुरान की सबसे बड़ी क्वालिटी और खूबसूरती है कि जो ही दर्स आगे बढ़ेगा आप देखेंगे चुनाव अल्फाज का, कि अल्लाह ने किस मौके पर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया, किस मौके पर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया। अल्लाह ने अस्लमू का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि अल्लाह खुद ही बयान कर रहा है कि मुसलमानों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह का शरीक बना लेते हैं, और जैसी मोहब्बत अल्लाह से करते हैं वैसी मोहब्बत उससे भी कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा वल्लज़ीना आमनू,
बहरहाल जो ईमान वाले होंगे, पक्के ईमान वाले, अशद्द हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह से मोहब्बत में बड़े सख्त होते हैं। सख्त का माना समझ रहे हैं? हम अल्लाह से मोहब्बत जो कर रहे हैं माबूद होने के नाते, हम ऐसी मोहब्बत किसी से कर नहीं सकते। सवाल ही पैदा नहीं, सवाल पैदा ही नहीं होता कि हम ऐसी मोहब्बत किसी से कर लें। जैसी मोहब्बत ईमान वाला अल्लाह से करता है, वैसी मोहब्बत वो अपने माँ बाप से नहीं करेगा। ईमान वाला वैसी मोहब्बत वो अपने बाल बच्चों और बीवी से नहीं करेगा, वैसी मोहब्बत दुनिया के किसी शख्स से नहीं करेगा, जैसी मोहब्बत वो अल्लाह से कर रहा है। अल्लाह ने कितना बेहतरीन अल्फाज का चुनाव यहाँ पे किया। मुसलमान ऐसे हैं, बात ऐसे जो अल्लाह के अलावा किसी को शरीक बना लेते हैं और अल्लाह जैसी मोहब्बत उससे करते हैं। लेकिन ईमान वाला जो होगा, पक्का मोमिन जिसे कहा जाता है, पुख्ता ईमान वाला, वो अल्लाह से बड़ी सख्त मोहब्बत करता है। कोई चीज उसके लिए वो चीज कोई अहमियत दे ही नहीं सकती कि वो अल्लाह जैसी मोहब्बत उससे करे। अल्लाह बयान कर रहा है, वलौ यरल लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब। यहाँ पर भी एक लफ्ज का अल्लाह ने चुनाव किया, अल्लज़ीना ज़लमू, जुल्म। बहरहाल जिन लोगों ने जुल्म किया, जब वो अजाब को देख लेंगे। जुल्म से मुराद यहाँ पे क्या है? शिर्क। जुल्म से मुराद यहाँ पर शिर्क। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था ना, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। सूरह लुकमान में है ये आयत, इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, जुल्म है। लुकमान अलैहिस्सलाम ने जुल्म का लफ्ज इस्तेमाल किया था, इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम, बेशक शिर्क जो है ये बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक जुल्म है। अल्लाह ने यहाँ पर भी लफ्ज ज़लमू इस्तेमाल किया, वलौ यरल लज़ीना ज़लमू, और इसका ताल्लुक पिछली आयत से, पिछले हिस्से से, कि जो लोग अल्लाह के अलावा शरीक बना रहे हैं यानी शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा जिन लोगों ने जुल्म किया यानी शिर्क किया, इज़ यरौनल अज़ाब, जब वो अजाब को देखेंगे तो उनको इल्म हो जाएगा, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया, तमाम किस्म की कुव्वत, ताकत, तवानाई अल्लाह के लिए, सबसे ज्यादा पावरफुल ताकत वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, तमाम किस्म की ताकत अल्लाह की, कुव्वत अल्लाह रब्बुल आलमीन, कोई नहीं है उसके जैसा, कोई नहीं, सब मोहताज है उसके, वो किसी का मोहताज नहीं। वह अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, चूंकि जो लोग अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं और अल्लाह जैसी मोहब्बत करते हैं, वो जान ले कि अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। वल्लाहु शदीदुल अज़ाब, अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। अब आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है, इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबऊ, जब पेशवा लोग अपने मुत्तबईन से बेजार हो जाएंगे, अपने मुत्तबईन से बेजार हो जाएंगे, वरअउल अज़ाब व तक़त्तत बिहिमुल अस्बाब, और वो अजाब को देख लेंगे और रिश्ते नातों को काट देंगे। ये देखिए बहुत अहम आयत है, आयत नंबर 166। पेशवा किसको कहा जाता है? रहनुमा कहा जाता है, जो लीड करता है किसी भी तंजीम को, किसी भी कौम को, जो लीड करता है। हमारे पेशवा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आजकल जो पेशवा के लक़ब ले लेते हैं और लोगों के पेशवा बनते फिरते हैं, हकीकत में पेशवा होते नहीं। आज के डेट में मुसलमानों का कायद कौन है? कोई नहीं। मुसलमान एक ऐसी सवारी पर सफर कर रहे थे जिसका ड्राइवर ही नहीं है। सहाबा थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में कोई काम करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद सहाबा की जमात अबू बकर सिद्दीक की क़यादत में काम करती थी। उनके इंतकाल के बाद उमर फारूक की क़यादत आई। इस तरीके से एक क़यादत कायद आया कि नहीं आया, लीडर आया कि नहीं आया, जो उनकी रहनुमाई करता था। लेकिन आज देखिए हमारी बदनसीबी या बदकिस्मती कहा जाए, ये क्या कहा जाए कि अल्लाह हमारे ऊपर से अपनी रहमतों को उठा लिया कि अल्लाह ने हमें कोई कायद नहीं दिया। आज हमारा कोई कायद नहीं जो डिसीजन ले सके, जो हुकूमत से बात कर सके, जो सही बात और सही दलील रख सके, कोई नहीं है। आज हमारे कायद ऐसे लोग बने फिरे हैं जिनको दिन से कोई लेना देना नहीं, उनको मतलब नहीं मस्जिद मदरसा से। लेकिन अफसोस है कि हम ऐसे लोगों को कायद मान के चल रहे हैं। यहाँ वही बात कह रहा है कि ऐसे लोग जो पेशवा अपने मुत्तबईन से बेजार हो जाएंगे, मतलब वो अल्लाह से कहेंगे हश्र के मैदान में कि अल्लाह मैं कोई पेशवा नहीं था, ये लोग मुझे वैसे ही बना दिया था, आप पेशवा बन जाइए। और इनके और ये मुझे उल्टा पुल्टा काम करवाते थे, शिर्क करवाते थे, ये करवाते थे, मैं इस सब में नहीं था। वो बेजार हो जाएगा। क्यों बेजार हो जाएगा? अल्लाह बयान कर रहा है, वो रअउल अज़ाब, अपने आंख से अजाब को देख लेगा। है ना वो हदीस कि हश्र के मैदान में जन्नत को भी लाया जाएगा और जहन्नम को भी लेकर आया जाएगा। लोग जहन्नम को देख कर डर जाएंगे, या अल्लाह ऐसा खतरनाक जहन्नम। लोग कहेंगे एक बार दुनिया में भेज दे, या अल्लाह एक बार दुनिया में भेज दे, फिर देख कैसी इबादत करते हैं। अब तुमको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दिन रात मस्जिद में, दिन रात इबादत में। ये आलम होगा मैदान महशर में।
तो जिस वक्त पेशवा अपने मुत्तबीन से बेदार हो जाएंगे, अब मुत्तबीन अपने पेशवा से बेजार हो जाएंगे, वो कहेंगे यही हमको फंसा के रखा था, हम निकलना चाह रहे थे लेकिन निकलने नहीं दे रहा था। वहां एक दूसरे पर फेंका फेंकी होगा, ये उसको मोरिद इल्जाम ठहराएंगे और ये उसको मोरिद इल्जाम ठहराएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मुसलमानों का पेशवा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी इत्तिबा, जिनकी इताअत हमारे ऊपर लाजिम और फर्ज है कि हम उन्हीं को अपना रहनुमा, अपना रहबर, अपना कायद, अपना पेशवा माने। गरचे आज हमारा कोई कायद नहीं है, लेकिन उनकी तालीमात हमारी कायद है। उन्होंने हर जिंदगी के हर मामलात में, हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में हमारी रहनुमाई की है। वो उनकी तालीमात आज हमारी कायद है कि हम उनकी तालीमात के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। वो तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, वो सारे रिश्ते नातों को तोड़ देंगे। डर के मारे जहन्नम के अजाब को देखेंगे तो सब कुछ खत्म कर देंगे और सिर्फ एक अल्लाह की तरफ दौड़ भागेंगे कि अल्लाह एक बार दुनिया में भेज दे, हम जाकर तेरी इबादत करेंगे, हम कभी गलत काम नहीं करेंगे, जो किताब और सुन्नत की तालीम होगी उसी पर अमल करेंगे। तो अल्लाह कहेगा कि यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, एक बार दुनिया से चल जाने के बाद दोबारा जाने का रिवाज नहीं। इसीलिए जो जिंदगी हमें और आपको मिली है, ये बड़ी कीमती जिंदगी है। इसके औकात, इसके लम्हात, इसके सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, महीना, साल, ये सब हमारे लिए बहुत खास है। तो हम इसको गंवाए नहीं, हम इसको इसी तरीके से बर्बाद ना करें, बल्कि वक्त की कदर करें, अल्लाह के करीब जाए, उसकी निशानियों पर गौर करें और जो अहकामात अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर, उस पर मीन अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन तो हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले और तो हमें नेक समझ की तौफीक अता फरमा। दर्स में जो कुछ बातें आपके सामने बयान की गई, अगर कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, और जो लोग ऑनलाइन है वो लिख कर पूछ सकते हैं।